بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسموگ کی صورتحال بہتر ہے۔ نگران پنجاب حکومت کا لاہور میں اس بدھ کو چھٹی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت انسداد اسموگ اقدامات کے حوالے سے خصوصی اجلاس۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے تناظر میں اس بدھ کو چھٹی نہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ محسن نقوی نے آئی جی پنجاب اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ اسموگ کا سبب بننے والی اینٹوں کے بھٹوں اور فیکٹری کے خلاف بھی بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن لینے کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی نے تمام متعلقہ محکموں کو ایئر کوالٹی انڈیکس کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ انسداد اسموگ کی حکمت عملی مزید سخت۔ ڈی سی لاہور نے انسداد اسموگ سیل بنا دیا۔ انسداد اسموگ اقدامات کے لیے 15 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ایچ آر کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر کا کہنا تھا کہ انسداد اسموگ سیل اسپیشل اسکواڈ کی کارروائیوں کی نگرانی بھی کرے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، انسداد اسموگ کا معاملہ ہے اور انسداد اسموگ اقدامات کے لیے 15 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ فوکل پرسن اے سی ایچ آر کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ انسداد اسموگ سیل اسپیشل اسکواڈ کی کارروائیوں کی نگرانی بھی کرے گا۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ انسداد اسموگ سیل ضلع بھر کی اسموگ فری بنانے کے لیے کارروائیوں کا دائرہ کار وسیع کرے گا۔ فصلوں کی باقیات اور کوڑا کرکٹ کو جلانے والے افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے، جبکہ زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو موقع پر بند کر دیا جائے گا۔ فیکٹریوں پر عمل نہ کرنے والے بھٹا مالکان کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانا ہوگی، جبکہ اسموگ سیزن میں قوانین پر سختی سے عمل درآمد کے لیے تمام محکمے فیلڈ آپریشن میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر انسداد اسموگ کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر انسداد اسموگ سیل تمام محکموں کی کارکردگی پر کڑی نظر رکھ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب بات کریں گے ڈینگی وائرس کے حوالے سے۔ ڈینگی مچھر کے ڈنگ مزید تیز ہونے لگے۔ لاہور میں ڈینگی کے 104 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں 174 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 3316 مصدقہ مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈینگی مچھر کے وار تیز ہونے لگے۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 104 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ صبح بھر میں 176 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ وزارت پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی کے 8003 کنفرم مریض سامنے آ چکے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد 3316 تک جا پہنچی۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 95 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 53 مریض داخل ہیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب نے ڈینگی کی روک تھام کے لیے شہریوں کو محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ انسداد اسموگ اقدام کے تحت فصلوں کی باقیات جلانے اور کسی بھی چمنی سے کالا دھواں نکلنے پر اضلاع کے ڈی سی ذمہ دار ہوں گے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ لاہور کی انسداد ڈینگی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس پرائس کنٹرول اور انسداد اسموگ سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور شہر میں ایک روز میں گراں فروشی پر 27 مقدمات درج کیے گئے۔ ڈویژن بھر میں گزشتہ 22 دنوں میں گراں فروشوں کے خلاف 902 مقدمات درج کیے گئے، 770 گرفتاریاں ہوئیں۔ چاول سمیت دالوں کی قیمتوں میں 20 سے 30 روپے کمی آئی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ لاہور میں چکن، آلو، پیاز، ٹماٹر اور سبزیوں کی قیمتوں کی نگرانی کی جائے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مارکیٹس میں موجود رہیں۔ فصلوں کی باقیات جلانے اور کسی بھی چمنی سے کالا دھواں نکلنے پر اضلاع کے ڈی سی خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب گاؤں چمکیں گے کہ ٹی او آرز میں فصلوں کو جلانے پر پابندی کو بھی شامل کیا جائے۔ اینٹوں کے تمام بھٹے رات کے وقت بھی زگ زیگ پر ہی چلنے چاہیے۔ ہر دھواں دینے والی گاڑی کو بند کر دیا جائے۔ ضلعوں اور موٹر وے پولیس پر مشتمل خصوصی انسداد اسموگ اسکواڈ دن اور رات کو گشت کریں۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ لاہور کی ڈینگی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز نے فیلڈ میں سرپرائز دورے کیے۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ڈینگی کا آؤٹ ڈور افزائش پانا مشکل ہوتا جائے گا۔ عوام سے گزارش ہے کہ گھروں کے اندر نمی اور اندھیرے والی جگہیں صاف رکھیں۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनावा हस्पताल को कैंसर हस्पताल में तब्दील करने का टास्क दे दिया है। कहते हैं पंजाब 14 करोड़ आवाम का सूबा है, एक भी सरकारी कैंसर हस्पताल नहीं। सरकारी सतह पर आला मेयार का कैंसर हस्पताल आवाम की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने LTA 1 विंडो सेल का भी दौरा किया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मनामा अस्पताल का दौरा, कैंसर अस्पताल के लिए मुजव्जा अराजी और अस्पताल की इमारत का मुआयना किया। मनामा अस्पताल को कैंसर अस्पताल में तब्दील करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब 14 करोड़ आवाम का सूबा है, एक भी सरकारी स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल मौजूद नहीं। सरकारी सतह पर आला मयार का कैंसर अस्पताल पंजाब के आवाम की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब का LDA 1 विंडो सेल का भी दौरा, 1 विंडो सेल में मौजूद मर्दों खवातीन से मुलाकात करके मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला ने एक शहरी की शिकायत पर मुतालिका ऑफिसर को फौरी अजाले का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी CBD साइट भी गए, जहां CBD बुलीवार्ड से वाल्टन रोड तक दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ वीक का आगाज कर दिया गया है। बीमारियों की रोकथाम के लिए हेल्थ वीक 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पूरे हफ्ते के दौरान 5 लाख अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, हेपेटाइटिस, TB और एड्स की मुफ्त स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन भी की जा रही है। ब्लड प्रेशर, शुगर और हामला ख्वातीन का मुफ्त चेकअप भी किया जा रहा है। 23 से 26 तक हफ्ता सेहत मनाने जा रहे हैं, और जिस तरह हमने मार्च में ये हफ्ता सेहत 2023 में मनाया था और तकरीबन 4.5 लाख के करीब अफराद को चेक किया था, उम्मीद है कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला 5 लाख से तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें हम मरीज़ों के शुगर का जनरल चेकअप और हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, TB और जो लोग हेपेटाइटिस B नेगेटिव होंगे उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी, और जिनको हेपेटाइटिस होगा तो उनका पूरा इलाज भी कराया जाएगा। इसके अलावा हम जो बच्चे हैं 2 साल से नीचे, उनकी तमाम की वैक्सीनेशन करेंगे, और ना सिर्फ वैक्सीनेशन करेंगे बल्कि जितने भी लोग हैं उनको दवाई भी दी जाएगी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का पंजाब के हस्पतालों में बद इंतज़ामी के खिलाफ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में एहतजाज। YDA रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हस्पतालों में रीवैम्पिंग के नाम पर अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन बेहतरी नहीं आ रही। तफसीलात मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में। YDA का पंजाब के अस्पतालों में बद इंतजामी के खिलाफ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। YDA रहनुमा डॉक्टर सलमान हसीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि अस्पतालों में करप्ट MS लगाए जा रहे हैं, रिवैम्पिंग के नाम पर अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, मगर कोई बेहतरी नहीं आ रही। अस्पतालों पे 5-5 अरब रुपए निछावर किए जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं 1 रुपया अस्पतालों पे नहीं लग रहा। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बनी, मशीनें आज भी खराब हैं, फर्श आज भी टूटे हुए हैं, और कल एक टूटी फूटी बिल्डिंग पे 5 अरब रुपया निछावर कर दिया गया। ये अनएक्सिस है। डॉक्टर शवेब नियाजी ने कहा कि लाहौर में जनरल अस्पताल की OPD 1 हफ्ते से बंद है। डिस्ट्रिक्ट कसूर अस्पताल बंद पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट कसूर को 18 दिन से हमने बंद किया हुआ है। लाहौर जनरल हॉस्पिटल को 7 दिन से OPD की स्ट्राइक की हुई है। अभी हमने इंडोज एक्टिव किए हुए हैं, एमरजेंसीज एक्टिव की हुई हैं, इलेक्टिव OTs लिस्ट चल रही हैं, लेकिन हमारे इस जो भी ओपनिंग है इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। आगे हम एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर होंगे। YDA के रहनुमाओं का कहना है कि अगर 48 घंटे में हमारे मुतालिबात न माने गए तो पंजाब भर के अस्पतालों की OPDs बंद कर देंगे। वफाक अपने मुकर्रर करदा रेट पर कपास खरीदें। निगरान पंजाब हुकूमत का वफाक से मुतालबा। निगरान सूबाई वुज़रा का कहना है कि किसान बहुत परेशान है, मुनासिब कीमत ना मिली तो अगले बरस कपास की फसल बहुत कम होगी। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और वज़ीर ज़राअत व सनअत व तजारत SM तनवीर की DGPR में कपास की कीमतों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर मीर का कहना था कि कपास की पैदावार से पंजाब की तरक्की मुंसलिक है। वफाक से मुतालबा है कि अपने मुकर्रर करदा रेट पर किसानों से कपास खरीदें। हम वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं पंजाब की निगरान हुकूमत के वो अपने ऐलान करदा नोटिफिकेशन पर कायम रहे, अपने वादे पर कायम रहते हुए 8500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से काश्तकार से कपास ख़रीदना शुरू करें।
निगरान वजीर SM तनवीर बोले, इस साल 2.5 गुना पैदावार मुतवक्के है। वफाकी हुकूमत से मिलकर 8,500 रुपए फी मन कीमत तय की गई थी। अगर कपास के मुनासिब कीमत नहीं मिली तो अगले साल कपास की काश्त बहुत कम होगी। कंटिन्यूसली फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जुलाई से कि 8,500 रुपए मन आपने किया हुआ है, आप TCP को एंगेज कर दें, TCP को इन्वॉल्व कर लें, जहाँ मार्केट गिरेगी TCP आए और सपोर्ट प्राइस पे अपना काम करे, जो आपने हमारे से एक प्रॉमिस किया है। सूबाई वुज़रा ने इस बात पर जोर दिया कि अगर सूबे की तरक्की को यकीनी बनाना है तो कपास के मामले पर संजीदगी के साथ बात करना होगी। और अब बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर फिर संभलने और रुपया लड़खड़ाने लगा। डॉलर इंटरबैंक में 32 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 281 रुपये पर जा पहुंचा। पीर को डॉलर की पोजीशन में कदरे बेहतरी आई। ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में 1 रुपये का इजाफा हुआ। खरीदारी तेज़ होने पर ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 281 रुपये तक रहा जबकि इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 279 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ। महंगाई और गिरां फरोशी के वार जारी। सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी आसान न हो रही। सिंहपुरा सब्जी मंडी में आए शहरी भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं महंगाई में कोई कमी नहीं आई। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादर। सब्जियां और फल खरीदारी मुश्किल। मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। प्याज का सरकारी रेट 82 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 110 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 120 रुपए के बजाय 140 रुपए फी किलो मिल रहा। लहसुन हरनाई की सरकारी कीमत 450 रुपए फी किलो है। मार्केट में लहसुन हरनाई 580 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। अदरक 790 रुपए के बजाय 1020 रुपए फी किलो दस्तयाब है। फल भी सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त किए जा रहे। ओपन मार्केट में सेब काला कोलू 320, जापानी फल 250 रुपए फी किलो है। सिंहपुरा मंडी में आए खरीदार कहते हैं महंगाई में कोई कमी नहीं आ रही। प्याज भी वो भी महंगा हो रहा है, जो आलू है वो भी महंगे। मोहल्लों में 120 रुपए 40 रुपए किलो। ये बात तो नहीं है। हमारी जो दिहाड़ी है वो हम 700-800 रुपया शाम तक पकड़ते हैं। मामूली सी चीज़ है, ये 1000-1200 रुपए की है। घर में खाली ये मसाला ही है, हांडी तो नहीं है, ये सब्ज़ी तो नहीं ना पकानी, ये तो सिर्फ इस मसाला है। ये खाली 1000-1200 रुपए का, तो सब्ज़ी का क्या रेट है? सब्ज़ियाँ मुझे कोई दिखा दें, 150 से कम किलो सब्ज़ी है कोई नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा है कि अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। अशिया की मुकर्ररा नरखों से ज़ायद पर फ़रोख्त की सूरत में मुतल्लिका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जवाबदेह होगा। किरायों में कमी की फहरिस्तें मुसाफिर बसों में आवेज़ा कराई जाएँ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। अशिया खुरनोश की कीमतों और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने नए निर्ख नामों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की भी हिदायत। सेक्रेटरी सनत ने ब्रीफिंग में बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में 5 से 10% कमी की गई है। ओवर चार्जिंग पर ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा है कि अशिया की जायद निर्खों पर फरोख्त पर मुतल्लिका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जवाबदेह होगा। मुकर्ररा निर्खों पर अशिया की दस्तयाबी इंतजामी अफसरान की जिम्मेदारी है। मुसाफिर बसों में किरायों में कमी की लिस्टें अवेजा कराई जाएं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने टमाटर और प्याज में गिराव फरोशी पर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। राफिया हैदर ने कहा है कि ADC हेडक्वार्टर्स की सरबराही में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स मंडियों में सरप्राइज चेकिंग करें। मंडी में गिराव फरोशी हुई तो मुतल्लिका AC जवाबदेह होगा। सरकारी कीमतों के इतला की रिपोर्ट दिन में 2 मरतबा पेश करने की भी हिदायत की गई है। यहाँ पर आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा। पार्टी के लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल कहते हैं नवाज शरीफ आप पर उंगलियां उठ रही हैं, एक तरफा इलेक्शन कबूल नहीं होगा। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। बेगम नुसरत भुट्टो की 12वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम कुरान ख्वानी का एहतमाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने कहा कि नवाज शरीफ आप पर उंगलियां उठ रही हैं, एक तरफा इलेक्शन कबूल नहीं होगा। इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान किया जाए। असलम गिल का मजीद कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। भुट्टो की वजह से आज पाकिस्तान महफूज है। बीबी शहीद ने मीनारे पाकिस्तान जलसा किया तो हर तरफ इंसान ही इंसान थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 86 में लाहौर तशरीफ लाई
और एक मीनार पाकिस्तान, लाहौर के एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान इंसानों का समुंदर था। असलम गिल ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का अदम करार देने का खैर मकदम किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद और मरी के लिए रवाना हो गए। मंगल को इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ की रवानगी के वक्त चंद कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि बकरे का सदका भी दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की इस्लामाबाद और मरी के लिए रवानगी। जाती उम्रा से रवानगी के वक्त उनकी गाड़ी के साथ सरकारी सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। मंगल को मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत केस पर भी समाअत होगी। एहतसाब अदालत ने 24 अक्टूबर तक तोशा खाना केस में गिरफ्तारी रोकी थी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में हिफाजती जमानत पर हैं। नवाज शरीफ की रवानगी से कबल जाती उम्रा के गेट पर कारकुन बीबी वडेरी की जानिब से बकरे का सदका दिया गया। साबिक एमपीए मिर्जा जावेद की जानिब से मिठाई भी तकसीम की गई। नवाज शरीफ की रवानगी के वक्त कारकुन भी मौजूद थे जो नारेबाजी भी करते रहे। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। FIA सेंट्रल कोर्ट में अडियाला जेल हुकाम की जानिब से परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है। एंटी करप्शन के मुकदमे में परवेज़ इलाही की अपील को हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा FIA सेंट्रल कोर्ट के जज तनवीर अहमद शेख ने मुकदमे पर समाअत की। अडियाला जेल हुकाम की जानिब से परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये रिपोर्ट किसने बनाई है। जेल हुकाम की जानिब से बताया गया कि डॉक्टर्स की टीम ने परवेज इलाही का चेकअप करने के बाद ये रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही सफर करने के लिए फिट नहीं है। अदालत का कहना था कि MPO के ऑर्डर तो खत्म हो गए हैं, जिस पर वकील ने बताया कि जी ऑर्डर खत्म हो चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने भी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। परवेज इलाही के वकील ने अदालत में बताया कि 14 अगस्त को MPO के ऑर्डर खत्म हुए। इसके बाद परवेज इलाही को अडियाला जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या आज के दिन तक कोई MPO का ऑर्डर स्टैंड कर रहा है। वकील परवेज इलाही ने अदालत को बताया कि FIA ने परवेज इलाही के खिलाफ सिर्फ चालान जमा करवाया है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने मोनिस इलाही के प्लीडर मुकर्रर करने पर अदालत में एतराज उठाया। अदालत ने मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब एंटी करप्शन के मुकदमे में परवेज इलाही की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑफिस एतराज खत्म कर दिया। अदालत ने अपील पर डायरी नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब पर इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पेशी के बाद मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम को यकीन है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात नवाज शरीफ ही दिला सकता है। नुमान नूर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मरियम औरंगजेब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जज अबर गुल ने समाअत की। अदालत ने मुकदमे की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर इतलात मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि TV प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हर दौर में ऐसे मुकदमा दर्ज होते हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि अवाम को यकीन है पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात नवाज शरीफ ही दिला सकते हैं। मुल्क अब किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को ये यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन है कि आज की मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की बरकत से सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं। दौरान समाअत लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ अदालत में पेश न हुए और उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और जलाओ घिराव के मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आ गई है। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने मुल्ज़िम मोहम्मद आज़म के पेश न होने पर इश्तिहार जारी कर दिया। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोकर कहते हैं कि नवाज शरीफ का मिसाली इस्तकबाल खुशहाली की निशानी है। नुमान नूर की रिपोर्ट।
2018 में लीगी रहनुमाओं की रैली में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और जलाओ घिराव का मुकदमा इंसादे दहशत गर्दी अदालत की जज अबरगुल खान ने समाअत की। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद आजम के पेश न होने पर इश्तहार जारी कर दिए। लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर समेत दीगर मुलजिमों के खिलाफ समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। सैफ खोखर, अफजल खोखर, शफीक खोखर समेत दीगर ने अदालत पेश होकर हाजिरी लगाई। पुलिस ने 2018 के मुकदमे में मुलजिमों को बेगुनाह करार देकर अखराज रिपोर्ट बनाई। प्रोसिक्यूशन ने पुलिस की अखराज रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सैफुल मुलूक खोखर ने अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे 2017 में अल्लाह ताला ने कामयाबियां दी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन किया। इंशाअल्लाह अब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान को एक कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। अदालत ने सैफुल मुलूक खोखर समेत दीगर को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली कानून में तरमीम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस शाहिद बिलाल ने शहरी मशकूर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम के बाद ताहयात नाअहली की मुद्दत को ख़त्म करके 5 बरस कर दिया गया। अदालत इलेक्शन एक्ट में तरमीम का कलअदम करार दे दे। इलेक्शन कमीशन की वकील ने बताया कि तरमीम असम्बली में हुई, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील की मोहलत देने की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सेंट्रल जेल कोट लखपत का अचानक दौरा किया। मर्द और ख़वातीन कैदियों की बैरक्स में गए और मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला ने जेल में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की और कैदियों के साथ मिलकर दुआ की। लियाकत अली की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के सेंट्रल जेल कोट लखपत के दौरे से इंतजामिया और जेल हुकाम भी लाइल्म रहे। मोहसिन नकवी मर्द और ख़वातीन कैदियों की बैरक्स में गए और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने अपने स्टाफ को मौके पर ही हिदायत दी। बुजुर्ग कैदी ख़वातीन अपने केस बताते हुए आप दीदा हो गयी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग कैदी ख़वातीन को दिलासा दिया और कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा। गुजरात के रहायशी कैदी को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए गुजरात जेल में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कैदियों की दरख्वास्त पर आंखों का फ्री ऑपरेशन कराने का हुक्म दिया। जेल में खुसूसी मेडिकल कैंप लगाने की हिदायत। वज़ीर आला ने जेल के अहाते में खड़ी एम्बुलेंसेस का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने जेल में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की और कैदियों से मिलकर दुआ भी की। मज़लूम फ़लस्तीनियों की दादरसी के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन पुरज़म है। ग़ज़ा मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप लाहौर से रवाना कर दी गई। अल-खिदमत फाउंडेशन ने 15 करोड़ का इमदादी सामान भिजवा दिया है। राहील अली की रिपोर्ट देखिए। फ़लस्तीनियों के साथ जज्बा हमदर्दी में अल-खिदमत फाउंडेशन पेश ग़ज़ा मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप रवाना कर दी। सेक्रेटरी जनरल अल-खिदमत फाउंडेशन सैयद वकास जाफरी ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि 13 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान में ग़ज़ाई अजनास, बेबी किट्स, अद्वियात और दीगर अशिया मौजूद हैं। ज़रूरियात की जो कि उनकी डिग्निटी किट्स मौजूद हैं। इसके अंदर जो है कि बच्चों के लिए नौज़ायदा बच्चों की किट इसमें शामिल है, हाइजीन किट शामिल, इसमें कैंड फूड जो है कि जो ज़्यादा देर तक जो है कि काम किया कर सकता है वो इसके अंदर मौजूद है। और जैसे जैसे हमें वहाँ से डिमांड आ रही है, ज़ाहिर बात उसके मुताबिक हम भेजेंगे। तो जो यहाँ से भेज सकते हैं वो ये रेडी फॉर इट हम वो कर रहे हैं। और जो मेडिसन, जी बिल्कुल, मेडिसन जो ज़रूरत फौरी तौर पर है वो हम यहाँ से हमने भिजवा रहे हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन बैनुल-अक़वामी इदारों के जरिए इमदादी सामान रफ़ा बॉर्डर पर पहुँचा चुकी है, जहाँ से इमदादी सामान के ट्रक मुतासर इलाकों तक जाएंगे। कैमरामैन ज़िशान जाहिद के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि LTA 1 विंडो सेल अवाम के लिए दर्द सर बन गया है। शहरियों के लिए मसाइल हल करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। सूबाई मोहतसिब ने शहरियों से नारवा सलूक पर नोटिस ले लिया है। LTA हुकाम को सवालनामा भी भिजवा दिया गया है, जबकि LTA 1 विंडो सेल में शहरी मसाइल को हल करने की बजाय उलझाया जाने लगा है। सेल में दरख्वास्त जमा और मसाइल हल करवाना शहरियों के लिए चैलेंज बन चुका है। सूबाई मोहतसिब ने 1 विंडो सेल में शहरियों से नारवा सलूक पर नोटिस ले लिया है। सूबाई मोहतसिब ने LTA हुकाम को 24 निकात पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवा दिया है। सूबाई मोहतसिब पंजाब ने 2 रोज़ में सवालात के जवाबात जमा करवाने की भी हिदायत कर दी है। लाहौर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।